नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के सुर्खियों पर। सचिन पांचाल के परिवार को 10 लाख का मुआवजा, मंत्री ईश्वर खंड्रे ने की घोषणा। बीदर जिला कांग्रेस समिति ने पूर्व प्रधानमंत्री को दी श्रद्धांजलि। बीदर ठेकेदार आत्महत्या मामला, पूर्व पार्षद समेत 5 अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज। एसआईटी ने बलात्कार और हनी ट्रैप मामले में भाजपा विधायक मुनिरत्नाथ के खिलाफ 2481 पन्नों की चार्जशीट दाखिल। संविधान समय की हर्ष कसौटी पर खरा उतरा, मन की बात में बोले पीएम मोदी। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर चुनाव जीतने के लिए लोगों के वोट कटवा रही बीजेपी, केजरीवाल का बड़ा आरोप। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। वन पर्यावरण और जीव विज्ञान और जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंड्रे ने भालकी तालुके के कट्टिटुगम गांव निवासी प्रथम श्रेणी ठेकेदार 26 वर्षीय सचिन मोनप्पा पांचाल के घर का दौरा किया, जिन्होंने हाल ही में आत्महत्या की थी। मंत्री ने सचिन के परिवार को सांत्वना दी। उन्होंने सचिन के परिवार के सदस्यों को आश्वस्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री से सचिन आत्महत्या मामले की निष्पक्ष जांच कराने का अनुरोध किया जाएगा। उन्होंने व्यक्तिगत और सरकार की ओर से मुआवजे के तौर पर 10 लाख रुपए देने का भी वादा किया। उन्होंने कहा कि रेलवे पुलिस पहले से ही मामले की जांच कर रही है और निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाएगी। उन्होंने कहा कि इसमें जो भी दोषी होंगे, चाहे वे कितने भी प्रभावशाली क्यों न हो, सरकार उन्हें सजा देगी। मैं विधानसभा क्षेत्र का विधायक, जिला प्रभारी मंत्री होने के नाते आपके परिवार को न्याय दिलाने का ईमानदारी से प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा कि अगर सचिन के साथ अन्याय हुआ है तो इसे सरकार के ध्यान में लाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार आपके परिवार के साथ खड़ी रहेगी। डेथ नोट के बारे में एफएसएल रिपोर्ट आने दीजिए, सरकार इस पर गौर करेगी और कार्यवाही करेगी। इस मौके पर सचिन के पिता मोनप्पा पांचाल, माता ईरम्मा, बहनें संगीता, सुरेखा, सुजाता, सुनीता और सविता मौजूद रहीं। विशेष संवाददाता की ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊರಮ್ಮ. ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖದ ಮತ್ತು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಯುವಕ, ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಒಂದು ಪರಿವಾರದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಇವತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥದ್ದು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಬಹಳ ಖೇದಕರವಾದಂಥ, ದುಃಖಕರವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ದುಃಖ ತಪ್ತ ಪರಿವಾರದವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಭಾಳ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಸಚಿನ್ ಪಾಂಚಾಲ್ ರವರ ಪರಿವಾರದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಅವರ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಅವರು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಚಿನ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೇಲೆ ಅವರ ಪರಿವಾರದವರು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ 2-3 ಕಡೆ ಹೋಗಿ ದೂರು ಕೊಟ್ಟರು. ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಆ ದೂರನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮಹತ್ತರವಾದಂಥ ಒಂದು ದೂರಾಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಅವರಿಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಇವತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಕ್ರಮ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಪಾಂಚಾಳ್ ತನ್ನ ಒಂದು ಡೆತ್ ನೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮರಣ ಪತ್ರ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಈಗಾಗಲೇ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರು FIR ಹಾಕಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಬರೋ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾಗ ಇದು ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರೇ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಚಿನ್ ಸಾವಿಗೆ ಕೆಲವರು ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅವರ ಏನೊಂದು ಡೆತ್ ನೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭರವಸೆ ಮೂಡುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಆಗ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ CODಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಈ ಒಂದು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಆರೋಪಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಇದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು, ಇವತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂಥವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭದ್ರತೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಜಂಟಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜೀವ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದಂಥದ್ದು, ಜೀವ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಆ ಪರಿವಾರದವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಪರಿವಾರದವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತನಿಖೆ ನಡೀತದೆ. कांग्रेस जिला इकाई ने शहर में रहे कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। पार्टी की जिला इकाई के अध्यक्ष बसवराज जापशेट्टी ने पार्टी की जिला इकाई कार्यालय में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में मनमोहन सिंह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए मौन रखा गया। पार्टी नेताओं ने प्रधानमंत्री समेत विभिन्न पदों पर देश के लिए मनमोहन सिंह के योगदान की सराहना की। पूर्व सांसद नरसिंह राव सूर्यवंशी, विधान परिषद के पूर्व सदस्य अरविंद कुमार अरली, के पुंडलिक राव, KPCC के उपाध्यक्ष जॉन वेस्ले, महासचिव संजय जागीरदार, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष गीता पंडित चिद्री, नगरपालिका स्थायी समिति के अध्यक्ष प्रशांत डोडी, सदस्य हनुमंत मलकापुरे, पूर्व सदस्य धनराज हंगरगी, जिला इकाई के महासचिव दत्तात्री मूले, एहसान कमाल परवेज, नेता लियाकत उल्लाह खान सहित कई नेता मौजूद रहे। संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉದ್ಗಿರ್ದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯಾಗಿ 14 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದ್ದೆವು. ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮಗೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆಯ್ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹೊಟ್ಟಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। कलबुर्गी शहर के स्टेशन बाजार पुलिस स्टेशन के कर्मियों ने कांग्रेस नेता और पूर्व पार्षद
राजू कापनूर सहित 6 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की, जो कलबुर्गी जिले के प्रभारी मंत्री प्रियांक खड़गे के अनुयायी बताए जाते हैं। कलबुर्गी शहर इकाई के भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर कि उन्हें पाटिल और 3 अन्य को कपनापुर और 5 अन्य लोगों द्वारा मौत की धमकी दी जा रही है, जिनके नाम शिकायत में थे। पुलिस ने काफी नाटकीय घटनाक्रम, भाजपा कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन और पुलिस निरीक्षक द्वारा एफआईआर दर्ज करने से कथित तौर पर इनकार करने के बाद एफआईआर दर्ज की। पाटिल कलबुर्गी ग्रामीण विधायक बसवराज मट्टीमूड़ू, भाजपा जिला प्रवक्ता राजकुमार पाटिल तेलकूर, पूर्व एमएलसी अमरनाथ पाटिल और पार्टी जिला अध्यक्ष ग्रामीण शिवराज पाटिल रेड्डीवाड़गी समेत भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर एफआईआर दर्ज करने का दबाव बनाया। वे शाम करीब 6:30 बजे पुलिस स्टेशन गए और कापनूर, उनके सहयोगियों नंद कुमार नागभुंजगे, गोरखनाथ सज्जन चिंचनूसूर, प्रताप धीर पाटिल, मनोज शेजवाल और रामनागौड़ पाटिल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उनकी शिकायत में कहा गया कि बीदर के एक ठेकेदार सचिन पांचाल, जिन्होंने गुरुवार को आत्महत्या कर ली थी, ने अपने मृत्यु नोट में कहा था कि उन पर कपानूर उनके अनुयायियों द्वारा 1 करोड़ रुपए का भुगतान करने का दबाव था। पांचाल ने यह भी कहा था कि पाटिल मट्टीमूड़ू, भाजपा नेता मणिकांत राठौड़ और अंडोला सिद्धलिंगा स्वामी जी के करुणेश्वर मठ के प्रमुख को आरोपियों से जान से मारने की धमकी मिल रही थी। युवक आत्महत्ये ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದರ ಡೆತ್ ನೋಟ್ದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ನೋಡಿದಾಗ 4 ಮಂದಿ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಪರಿ ಕೊಟ್ಟಿನಂತಕ್ಕಂತ ಕೂಡ ಸಚಿನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಡೆತ್ ನೋಟ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಕಮಿಷನರ್ ಹತ್ತಿರ ನಾವೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪಕ್ಷ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕಮಿಷನರ್ ಹತ್ತಿರ ಹೋದಾಗ ಕಮಿಷನರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ಮಾಡಿಸ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಶಕೀಲ್ ಅಂಗಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವು 4 ಗಂಟೆಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಮಗೆ ಒಳಗೆ ಕುಂದಿರಿಸಿ ಟೈಮ್ ಬರೀ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಜಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಎಫ್ಐಆರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿರಬೇಕು. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಕೈವಾಡ್ಲಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ರೀತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಎದರನ್ನು ಭಾಗವಹಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಕಮಿಷನರ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, SP ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಆದಷ್ಟು ಇದರೆಲ್ಲ ಶಾಸಕರು, ಮಠಾಧೀಶರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಹೆಸರು ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ, ತಕ್ಷಣ ಎಫ್ಐಆರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಒಳಗಾಗಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಉಗ್ರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಮೆಮೊರಣೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರ ದಿನದ ಮುಂದೆ ಇದು ತಕ್ಷಣ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಚಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ರ ಮನೆಗೂ ಹೋಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಕ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೇತೃತ್ವ ಎಲ್ಲರೂ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಶಕೀಲ್ ಅಂಗಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಾತಾಡಿದಾನೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆ MB ನಗರ ಬರ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ಮಾಡಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಾನೆ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ತನಿಖೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಕೂಡ ಇದು ಯಾವುದೇ ಇದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಆದ್ರೆ CBIಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆಗ್ರಹ ಇದೆ. ಜೀವ ಭಯ ನಾವು ಬರ್ದಿಟ್ಟೆ, ಡೆತ್ ನೋಟ್ದಲ್ಲೇ ಬರ್ದಿಟ್ಟು ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸುಪರಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದಾನ. ಅವ್ರ ಫೋಟೋಗಳು ಕಳಿಸಿದೆ, ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಯಾರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ನನ್ನ ಕೆಡಿಗಿದೆ. ಅದು ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದ ನಾನು ಅದು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಯುವಕ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನೋವಿನ ಒಂದು ಸಂಗತಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೆದಿಟ್ಟಂತ ಡೆತ್ ನೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಆಂದೋಲನ ಶ್ರೀಗಳ ಹೆಸರು, ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಬಸವರಾಜ ಮತ್ತಿಮೂಡ್ ಅವರ ಹೆಸರು, ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಚಂದು ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಮಣಿಕಂಠ ರಾಠೋಡ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸುಪಾರಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಕೊಲೆಯನ್ನ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನ ಇವತ್ತು ಆ ಡೆತ್ ನೋಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಇದನ್ನ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಪ್ಪಿಸ್ತರಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ಬಂಧಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಬಣ್ಣವನ್ನ ಹಚ್ಚುವಂತ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನ CBIಗೆ ಇದನ್ನ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ತಪ್ಪಿಸ್ತರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮವನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾದರೂ ಎತ್ತೆಚ್ಚಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ರಮವನ್ನ ಜರುಗಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಉಗ್ರವಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
राजा राजेश्वर नगर के भाजपा विधायक मुनिरत्ना के खिलाफ दर्ज बलात्कार और हनी ट्रैप मामले में विशेष जांच दल एसआईटी ने शुक्रवार को 2481 पन्नों की चार्जशीट पेश की। चार्जशीट विशेष अदालत में पेश की गई। 40 वर्षीय एक सामाजिक कार्यकर्ता ने 18 सितंबर को कगलीपुरा पुलिस स्टेशन में विधायक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप पत्र में आरोप लगाया गया था कि विधायक ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को फंसाने के लिए एचआईवी से पीड़ित महिलाओं का शोषण किया। हेबागोड़ी पुलिस स्टेशन से संबंध पुलिस निरीक्षक अय्यन रेड्डी का नाम इन आपराधिक षड्यंत्रों में विधायक की कथित सहायता करने के आरोप में आरोप पत्र में दर्ज किया गया है। एसआईटी ने आरोप पत्र में 146 गवाहों और 850 दस्तावेजों को साक्ष्य के तौर पर शामिल किया है। इन गवाहों में से 8 व्यक्तियों के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किए गए हैं। मुनिरत्ना द्वारा अपने प्रतिद्वंदियों को हनी ट्रैप में फंसाने के लिए कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए कई वीडियो भी बरामद किए गए। मुनिरत्ना और अय्यन रेड्डी के अलावा विधायक के सहयोगी श्रीनिवास पी और सुधाकर आर का नाम भी चार्जशीट में दर्ज है। एसआईटी वर्तमान में 3 मामलों की जांच कर रही है, जिनमें से 2 बेंगलुरु के व्यालीकावल पुलिस स्टेशन में हैं और 1 रामनगर जिले के कगलीपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज है। 3 एकड़ भूमि पर केले की खेती करने वाले एक किसान ने शनिवार को अपनी फसल काट ली और कीमतों में भारी गिरावट के कारण इसे मुफ्त में वितरित कर दिया। कोलार जिले के कोटेकनहल्ली के केवाई गणेश गौड़ा ने यह निर्णय तब लिया जब स्थानीय थोक व्यापारियों और फल विक्रेताओं ने उन्हें केले के लिए केवल 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से भुगतान करने की पेशकश की। गौड़ा ने बताया कि पिछले साल उन्होंने वड़ागुड़ सोसाइटी से 2 लाख रुपए का लोन लिया था और अपनी जमीन पर 2006 इलाकी केले के पौधे लगाए थे। कुल मिलाकर उन्होंने फसल पर 4.5 लाख रुपए खर्च किए थे। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ದುರ್ಗದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯಾಗಿ 14 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಯದ. ಐದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹೊಟ್ಟಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 117वें एपिसोड में कहा कि वर्ष 2025 में 26 जनवरी को देश में संविधान को लागू हुए 75 साल होने जा रहे हैं, जो हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माताओं ने हमें जो संविधान सौंपा है वह समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है। संविधान हमारे लिए गाइडिंग लाइट है और हमारा मार्गदर्शक है। उन्होंने कहा कि संविधान की विरासत से जोड़ने के लिए constitution75.com नाम से एक खास वेबसाइट भी बनाई गई है। इसमें आप संविधान की प्रस्तावना पढ़कर अपने वीडियो पर अपलोड कर सकते हैं। अलग अलग भाषाओं में संविधान को पढ़ने के साथ ही संविधान से जुड़े सवाल भी पूछ सकते हैं। पीएम मोदी ने देशवासियों से आग्रह किया है कि वे वेबसाइट को जरूर देखें और इसका हिस्सा बने। पीएम मोदी ने महाकुंभ का जिक्र करते हुए कहा कि इसकी विशेषता केवल इसकी विशालता में नहीं है, बल्कि इसकी विविधता में भी है। इस आयोजन में करोड़ों लोग एक साथ एकत्रित होते हैं। लाखों संत, हजारों परंपराएं, सैकड़ों संप्रदाय, अनेक अखाड़े, हर कोई इस आयोजन का हिस्सा बन सकता है। कहीं कोई भेदभाव नहीं दिखता, कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। अनेकता में एकता का ऐसा दृश्य विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नई दिल्ली विधानसभा सीट में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी लोगों के वोट कटवा रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा
कि बीजेपी चुनाव से डरी हुई है, इसीलिए वह ऐसे काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी हार मान चुकी है, ना उनके पास सीएम फेस है, ना कैंडिडेट है, ना ही उनके पास कोई विजन है। बीजेपी किसी भी तरीके से चुनाव जीतना चाहती है। दिल्ली में शुरू हुआ ऑपरेशन लोटस, केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने पहले शाहदरा में 11,000 वोट काटने की कोशिश की, अब नई दिल्ली विधानसभा सीट पर वोट काटे गए हैं। केजरीवाल ने कहा, आज मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूं, नई दिल्ली में 15 दिसंबर से इनका ऑपरेशन लोटस शुरू हुआ है। 5,000 वोट डिलीट कराने के लिए डाले गए हैं, 7,000 ऐड करवा रहे हैं, 12% वोट दिए इधर उधर कर रहे हैं। यदि ऐसा ही रहता है फिर तो चुनाव पानी में गया। मुंबई के पास समंदर में एक और बोट हादसा हो गया। इस हादसे में मछुआरों की बोट एक कार्गो शिप से जा टकराई। हालांकि इस हादसे में फिलहाल किसी के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है। बताया जाता है कि चीन की कॉलसिंग BTSJ फ्लैगछा कार्गो शिप से शनिवार देर रात मछुआरों की एक बोट जा टकराई। यह हादसा रात लगभग 12 बजे के आसपास हुआ है। कार्गो शिप से टक्कर के बाद मछुआरों की बोट समंदर में डूबने लगी। मछुआरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। आसपास मौजूद मछुआरों की बोट डूबते नाव को बचाने के लिए पहुंची। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही नेवी और कोस्ट गार्ड की टीम भी मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद तेजी से राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक मछुआरों के डूबते बोट पर सहायता के लिए नेवी और कोस्ट गार्ड की टीम कल रात से ही काम कर रही है। अभी तक इस पूरे घटनाक्रम में किसी के भी हताहत होने या घायल होने की कोई जानकारी नहीं है। बिहार की राजधानी पटना में पुलिस और BPSC अभ्यर्थी आमने सामने आ चुके हैं। पटना के गांधी मैदान में छात्रों के साथ जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पुलिस छात्रों को रोकने की कोशिश कर रही है। प्रशांत किशोर ने शनिवार को छात्रों से पटना के गांधी मैदान में जुटने का आह्वान किया। हालांकि पुलिस ने छात्रों को छात्र संसद करने की अनुमति नहीं दी। इसके बावजूद छात्र और जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता गांधी मैदान में जुट गए। पुलिस ने छात्रों को गांधी मैदान खाली करने के लिए कहा, लेकिन छात्रों ने नारेबाजी शुरू कर दी। जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक बड़ा ग्रुप पोस्टर बैनर के साथ गांधी मैदान पहुंचा। राजस्थान के कोटपुतली में बोरवेल में गिरी 3 साल की बच्ची को निकालने के लिए 6 दिन से रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। इसी बीच मीडिया के सामने बोरवेल में फंसी बच्ची की मां का दर्द छलक उठा। उन्होंने पूछा कि अगर वह कलेक्टर मैडम की बेटी होती तो क्या वह उसे इतने लंबे समय तक वहां रहने देती। उन्होंने कहा, मेरी बेटी को बोरवेल से 6 दिन हो गए हैं, वह भूख और प्यास से तड़प रही है, उसे अभी तक बाहर नहीं निकाला गया। अगर वह कलेक्टर मैडम की बच्ची होती तो क्या उसे इतने लंबे समय तक वहां रहने देती। कृपया मेरी बेटी को जल्द से जल्द बाहर निकालें। लगातार चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच बच्ची की मां धोली देवी बचाव दल में शामिल कर्मचारियों से उसकी बेटी को बाहर निकालने की गुहार लगाती नजर आ रही है। उसका एक वीडियो शनिवार को सामने आया, जिसमें वो रोती हुई और हाथ जोड़कर बेटी को बाहर निकालने के लिए गुहार लगा रही है। यह वीडियो स्थानीय पुलिस और प्रशासन की मदद से NDRF और SDRF की टीमों द्वारा लगातार चलाए जा रहे बचाव अभियान के बीच सामने आया। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉದ್ಗಿರ್ದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯಾಗಿ 14 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು, ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮಗೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆಯ್ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹೊಟ್ಟಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। दक्षिण कोरिया में एक पक्षी से विमान की टक्कर के बाद नेपाल की राजधानी काठमांडू में
एक हेलीकॉप्टर पक्षी से टकरा गया। इसके बाद उसकी आपात लैंडिंग करानी पड़ी। बता दें कि रविवार को सुबह करीब 9 बजे दक्षिण कोरिया में मुआन हवाई अड्डे पर लैंडिंग से पहले 181 यात्रियों के साथ उड़ान भर रहा विमान एक पक्षी से टकरा गया। इसके बाद वह हवाई अड्डे पर लैंडिंग करते वक्त लैंडिंग गियर नहीं खुलने से दीवार की फेंसिंग से टकरा गया। इसके बाद विमान में विस्फोट हो गया। इस घटना में अब तक 167 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इसके बाद कनाडा में हवाई अड्डे पर लैंडिंग के वक्त विमान का लेफ्ट विंग अचानक तिरछा झुककर रनवे पर रगड़ने लगा। इससे विमान के विंग में आग लग गई। वहीं बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया। अब काठमांडू में आज ही के दिन यह हेलीकॉप्टर हादसा होते होते बचा। बता दें कि अमेरिका के 5 नागरिकों को लेकर रविवार को नेपाल की राजधानी काठमांडू जा रहे एक हेलीकॉप्टर को एक पक्षी से टकराने के कारण राजधानी से 50 किलोमीटर पूर्व में बनेपा से आपात स्थिति में उतारना पड़ा। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अमेरिका के टेक्सास और मिसिसिपी में शनिवार को एक के बाद एक कई तूफान आए। तूफानों के तांडव में कई घरों की छत और वाहन उड़ गए, पलट गए। काफी संख्या में पेड़ और पोल भी गिर गए, क्षतिग्रस्त हो गए। इस भीषण तूफान में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य लोग घायल हो गए। तूफान से कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, ढेरों वाहन पलट गए। ब्राजोरिया काउंटी शेरिफ कार्यालय की प्रवक्ता मेडिसिन पोल्स्टन ने बताया कि ह्यूस्टन के दक्षिण में स्थित लिवरपूल के क्षेत्र में एक व्यक्ति की मौत हो गई तथा 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पोल्स्टन ने बताया कि लिवरपूल और हेलक्रिस्ट विलेज तथा एल्विन के बीच काउंटी में कई स्थान तूफान से प्रभावित हुए। उन्होंने बताया कि अब तक अधिकारियों को लगभग 10 क्षतिग्रस्त मकानों के बारे में पता चला, लेकिन वे अब भी नुकसान के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। आशंका है कि बड़े पैमाने पर घरों, प्रतिष्ठानों, दुकानों को नुकसान पहुंचा है। काफी संख्या में वाहन पलट गए हैं। कुछ वाहन पलटते हुए काफी दूर जाकर गिरे हैं। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। सचिन पांचाल के परिवार को 10 लाख का मुआवजा, मंत्री ईश्वर खंड्रे ने की घोषणा। बीदर जिला कांग्रेस समिति ने पूर्व प्रधानमंत्री को दी श्रद्धांजलि। बीदर ठेकेदार आत्महत्या मामला, पूर्व पार्षद समेत 5 अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज। एसआईटी ने बलात्कार और हनी ट्रैप मामले में भाजपा विधायक मुनिरत्न के खिलाफ 2481 पन्नों की चार्जशीट दाखिल। संविधान समय की हर कसौटी पर खरा उतरा, मन की बात में बोले पीएम मोदी। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर चुनाव जीतने के लिए लोगों के वोट कटवा रही बीजेपी, केजरीवाल का बड़ा आरोप। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।